नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में लगातार चौथे दिन भी एयर सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है और देश के एयरपोर्ट की हालत रेलवे और बस स्टेशनों से जैसी हो गई है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। 3 दिनों से परेशान फ्रांस की एक महिला ने काउंटर पे चढ़ा और डंकापति की लंका लगा दी। आप भी जरा वीडियो देखिए। Je vais retourner en France. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. Je vais mon billet. हालांकि हर ओर जहां भयंकर बेइज्जती होने के बाद भी पीएम साहब की सरकार सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी की तैयारी में है। दूसरी ओर भयंकर हालात पैदा होने के बाद 5 दिन बाद अचानक पीएमओ जागा है और जिस इंडिगो के जिस सीईओ को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो बयान पे बयान दिए जा रहा है। सरकार की क्या तैयारी है और कैसे पूरे मामले में कैसे डंकापति की लंका लगने वाली है, सब कुछ आपको रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, देश में 5 दिनों से हवाई सेवाएं अराजकता की भेंट चढ़ी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि नए नियम लागू किए गए हैं, इस वजह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन सच ये है कि अंदर खाने में कुछ और चल रहा है, क्योंकि नियमों में बदलाव तो 5 महीने पहले किए गए हैं और इस बात की जानकारी इंडिगो समेत सारी कंपनियों को थी। लेकिन 5 ही दिन में अचानक कैसे क्रूज स्टॉप की कमी हो गई, ये बात किसी के गले से उतर ही नहीं रही है। कुछ जगहों पे दावे किए जा रहे हैं कि ये सारा खेल प्री प्लान है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ सरकार के लोग भी लगे हुए हैं। हालांकि सरकार की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। इंडिगो के सीईओ ने वीडियो जारी करके माफी मांगी है। Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. The situation is a result of various causes, yet for you as a customer, it's important how we as Indigo address this. We have defined 3 lines of action. Firstly, customer communication and addressing your needs. For this, messages have been sent on social media, and just now a more detailed communication with information on refunds, cancellations and other customer support measures was sent. Also, we have stepped up our call center capacity. Secondly, due to yesterday's situation, we had customers stranded mostly at the nation's largest airports. Our focus was for all of them to be able to travel today itself, which will be achieved. For this, we also ask customers whose flights are cancelled not to come to airports as notifications are sent to us. Thirdly, cancellations were made for today as to align our crew and planes to be where they need to start afresh tomorrow morning. Earlier measures of the last few days regrettably have proven not to be enough. So we've decided today for a reboot of all our systems and schedules, resulting in the highest number of cancellations so far, but imperative for progressive improvements starting as from tomorrow. With these actions, we expect tomorrow to have cancellations below 1,000. The support of DGCA in providing specific FDTL implementation relief is of great help. Still, there's lots of work in progress, but going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, scale and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. I do understand that these disruptions have caused much discomfort to our customers and has shaken their belief in Indigo's reliability so carefully built over these past 19 years. My colleagues, all the great Indigo teams and frontline staff have been working relentlessly to address the situation. Rest assured, we are doing everything in our control to not only restore your trust and belief,
but strengthen it further over time. Thank you for your patience, understanding, and kindness during this difficult time. We shall keep you updated on an ongoing basis. दोस्तों, लेकिन बड़ा सवाल है कि मन में गूंज रहा है ये सवाल कि आखिर 5 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जो हालात इतने खराब हो गए। बता दें आपको कि अब तक करीब 1500 के आसपास फ्लाइट्स के रद्द होने की सूचना है और लाखों पैसेंजर हताहत हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, पैसेंजरों की हालत पे कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। सरकार ने इंडिगो के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के बजाय उसके लिए नियमों में ढील दे दी है। हालांकि नियमों में छूट मिलने के बाद हालात सामान्य नहीं हुए हैं, बल्कि आज भी करीब 400 फ्लाइट्स के रद्द होने की सूचना है। आज यात्रियों का हाल क्या है जरा आप भी देख लीजिए। और ऊपर से भड़क रही जैसे कि तुम्हारे घर का कहता हूँ कि मैं मेरा क्वेरी है, मैंने 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था। कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें है। क्या झक मार गया मैं? क्या बोल रहे हैं? सुन नहीं दे रहा है। वही चीज है। हाँ चलो लाइन में आते हैं। हम लोग लाइन में ही खड़े हैं कब से। हमारा चेक करो पहले सिचुएशन। देखा आपने, एक पैसेंजर का 3 दिनों से सामान एयरपोर्ट पे ही फंसा है, घर की चाबियां उसी में हैं, बेचारों को सोने और खाने की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन 3 दिन से सामान नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सोशल मीडिया पे 1-2 नहीं हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी। लेकिन सरकार ने कड़ा एक्शन लेने के बजाय इंडिगो के लिए नियमों को सरल कर दिया है। हालांकि इस पे पायलट एसोसिएशन ने आवाज उठाई है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का कोई बड़ा एक्शन नहीं आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इंडिगो सीईओ पीटर को हटाने की सिफारिश करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ऊपर से एयरलाइन पे भारी पेनल्टी की तैयारी है, जिसे इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एयरलाइन के टॉप अधिकारी आज फिर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय में तलब किए गए हैं। शाम 6 बजे एक जरूरी मीटिंग होगी, जिसमें मंत्रालय ये जानना चाहता है कि एयरलाइन ने हालात काबू पाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि अगर इंडिगो तुरंत सुधार नहीं दिखाती है तो आगे की कार्रवाई और कड़ी हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पूरे संकट पर प्रधानमंत्री कार्यालय को अलग से ब्रीफ करने की तैयारी कर चुका है। संकेत साफ है, केंद्र सरकार इस बार मामले को हल्के में नहीं लेने वाली है। यात्रियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और डीजीसीए पे कड़ा दबाव है कि वो तुरंत कार्रवाई करे। ऐसे में माना जा रहा है कि एयरलाइन के खिलाफ और भी कड़े कदम जल्द देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि मामला अभी तक जांच और कार्रवाई पे अटका है। ना तो सरकार की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ना ही कोई बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि ये अगर नए नियम बने थे तो क्या ये सरकार और मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं थी कि चीज़ों को चेक करती कि किन किन एयरलाइंस के पास ये सुविधाएं हैं और क्या ये नियम प्रवासी हो पाएंगे। और इसके लिए सीधे एयरलाइन से भी बात करनी चाहिए थी कि नए नियम के साथ उनके पास क्या सुविधाएं हैं। लेकिन मोदी सरकार तो बस नियम बना के जनता को लाइन में खड़ा करना चाहती है। जनधन खाते से लेकर के नोटबंदी तक, SIR से लेकर आधार कार्ड तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जनता को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि आज तक कोई भी काम लाइन में लगने वाला सही साबित नहीं हुआ है। जनधन खाते बंद हो गए, नोटबंदी का कोई असर नहीं दिखा, SIR का मामला आपके सामने है, आधार कार्ड अब अवैध कार्ड के रूप में प्रचलित हो गया है और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा का सपना दिखाने वाले PM साहब के राज्य में टिकट कुछ 100 किलोमीटर के टिकट 1 लाख रुपए में बिक रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जैसे ये गंभीर संकट खड़ा हुआ था तो इंडिगो को सीधे अल्टीमेटम देके उनकी सेवाओं को रिजेक्ट करके नई कंपनी को लगा देना चाहिए था और उसमें वायुसेना की भी मदद लेनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हाथ पे हाथ धर के तमाशा देख रही है और तैयारी में है कि CEO बदलवाने की तो कुछ रूट से हटाने की तैयारी है कि हल्की कार्रवाई करने की। और एक पैसेंजरों का क्या, जो बेचारे 5 दिनों से पैसा खर्च करने के भी वो रो ही रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने सामान को वापस देने के लिए स्टाफ के आगे पीछे घूम रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जो फ्रेंच महिला काउंटर पे खड़ी होकर चिल्ला रही है वो सिर्फ अपनी परेशानी को नहीं बता रही है, बल्कि डंकापति की डंका लगाने के साथ पूरी दुनिया में भारत की फजीहत करा रही है। और इसके लिए जो है सबसे बड़ी इंडिगो की नहीं बल्कि सीधे सरकार की है, क्योंकि ये मंत्रालय सीधा PM साहब के पास है तो उनका भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि परेशान यात्रियों की चिंता करते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? कहीं ना कहीं इसमें इंडिगो के साथ सबसे बड़ी गलती सरकार की है। अगर सरकार की ओर से नियमों में ढील देने के 24 घंटे बाद भी सेवाएं पटरी पर नहीं आई तो इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।